The idea was of creating Soul Sisters was that I wanted to do anything and everything in my power, even to this day, to help anybody, चाहे वो मेरे neighbors हो, चाहे वो मेरे office की कोई दोस्त हो, चाहे वो गोरी हो या चाहे वो पाकिस्तानी हो, non पाकिस्तानी हो, it does not matter. मैं आज भी अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा emphasize करती हूँ कि आप लोग प्लीज निकलें बाहर, अपनी लोकल मस्जिद जाइए. And that's something that I did. That's how I grew my network. कभी कभी बच्चे इस्लामी अपने शलवार कमीज में जाते हैं टोपी लगा के, तो एक बहुत ही उनको पता है कि उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी इज कमिंग इन टुगेदर. वही बच्चे शाम में पार्क जाके खेल रहे हैं, तो उनको पता है कि हमारे जैसे भी लोग हैं. सो यू नो, किड्स हु आर गेटिंग born and raised over here, they're already in a mixed society. I think बच्चों को अपनी आइडेंटिटी, बच्चों को इस्लाम से करीब रखना और हमारे पाकिस्तान से करीब रखना is extremely important for them to understand and realize where our roots are. I have always been extremely accommodating ke log apna purview share kare. The only time where I have I would say banned people out of the group is when um, language gets foul and if there is like direct kahin attacks ho rahe ho. Assalamu alaikum and welcome to Pod Art with Faiza. Welcome back to the next episode with Sidra Jameel, जो कि फाउंडर हैं सोल सिस्टर्स यूएसए की. हमने लास्ट एपिसोड में उनसे बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, लेकिन आज जो मेरा दिल है कि मैं उनसे अच्छी तरह से तफसील से हर चीज की डिटेल जितनी पूछ सकूं आप लोगों के लिए शामिल करूं. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. Assalamu alaikum. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया. Thank you for joining again. That's wonderful. So सिद्रा, हम बहुत सारी बातें आपसे कर रहे थे, पूछ रहे थे सोल सिस्टर्स के बारे में. आपको कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, आपको इसमें जो रिवॉर्डिंग जो उसकी एक फीलिंग होती है वो आपने शेयर की, कम्युनिटीज की हमने बात की. मुझे ये बताइए कि सिंस ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्लेम करते हैं, what is your personal take on women empowerment? What is it for you personally? I strongly believe in empowering anybody and everybody, regardless of the gender. अपने पैरों की मजबूती पे भरोसा करना is empowerment. In my Very good. This is what I was instilled from the inception of my childhood or my life, I would say, because I was raised by my grandmother. For the longest period of time, she was by herself because my grandfather had passed away. तो मैंने उनको बहुत एक she's an epitome of resilience, and that's where I get my push from, that धक्का, that kick that I need. Like I said, अपने पैरों की मजबूती पे भरोसा करना is an empowering idea in my purview. उसके बाद जैसे ये मुल्क है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर तो पेरेंट्स को उठा के जेल में डाल देंगे अगर आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा या एजुकेट नहीं करवाया. So until high school, government pushes itself. However, what I see a big problem here in the US is kids don't want to attend school after high school because the burden of the expense comes on them. They have to pay for their college fee, or their parents have to pay. So for instance, if the parents have been living hand to mouth agar sari zindagi rahe, paycheck to paycheck rahe, because think about it, lots of people are first like freshly off the boat, and they're first generation immigrant Generation. तो उनके पास वो बाप दादा का घर नहीं था जहाँ अम्मा अब्बा रह लिए, जैसे हमारे पास वो comfort था कि my dad didn't have to and then also because of the family structure over here. Yes. More of a neo-local family. You just want to you prefer being with your husband's spouse and then the kids. That's the structure that the country is promoting, or that the culture is promoting. However, that there's a downfall to it. There are cons to it itself. And having said that, सबसे ज़्यादा टोल वो हमारी जनरेशन के ऊपर लेता है कि उनको वो माहौल नहीं मिला, तो आप वो माहौल पैदा नहीं कर सकते. आपको माहौल एवरी डे माइंडफुली कॉन्शियसली क्रिएट करना है ताकि बच्चा वो देखे और वो उन तकलीफ से ना गुजरे जो इस माशरे का अलमिया बन चुकी है. फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स का कॉमन हो जाना. तो हाई स्कूल के बाद बच्चे को यहाँ पर वो पैशन और वो नहीं है, धक्का नहीं है कि उसको आगे अपनी एजुकेशन परस्यू करनी है, unless and until he's raised by parents who have been resilient or who have instilled those values of education in him.
गुड, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि एम्पावरमेंट सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि आपको अपने राइट्स का, अपनी ज़िंदगी के ऊपर आपके हक का पता होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उन माशरों में जहाँ की इसको बिल्कुल ही इस पे तवज्जो नहीं दी गई, तो दैट्स व्हाई वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। इसके इससे मुझे एक इंस्टेंटली एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया। मुझे बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट का की एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, कि वो एक औरत मार्च के नाम के अंडर, एक बैनर के अंडर आ रही है, और वो स्पेसिफिक किस्म की के इमेजेस हैं जो हम देखते हैं। तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? I think the idea was a great idea. Was it well received by the community? Not so much. There's a way to come at things. ठीक है? um, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है, और अल्फाज बहुत पावरफुल होते हैं। तो बिल्कुल। जो नाजेबा बैनर्स हमें जो सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट करके दिखाता है, that's something that पुट यू ऑफ। I personally I'm not okay with it. So the idea is great. Is it being transitioned well in the community? No, it is not. It is, and because it is not transitioned and portrayed well, it is not received well. So that kills the यस। purpose. That kills the purpose. Highlight क्या हो रहा है? गंदी गंदे अल्फाज. एक तरीका है. There's a way to come at things. आप use terms that make, use alfaz या use such words that make an impact. And when you're in a position where like you have attention from the media, why are you using ऐसे अल्फाज जो कि मुनासिब नहीं है हमारे कल्चर में यूज करना, और कम्युनिटी रिस्पेक्ट बिल्कुल। नहीं करती, तो वो it has I think the purpose is not being served. The I एग्जैक्टली। purpose is not being served. Now that the people like you are like doing such a wonderful job, आप लोग exactly women empowerment के ऊपर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट हर चीज़ का एक सलीका हमें सिखाया गया था जिसको हम अपना कल्चर कहते थे। सो आप वही काम एक बेहतर तरीके से करके दिखा रहे हैं। आप कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बट आपको ऐसे इमेजेस और ऐसी चीज़ें जो आपके माशरे से ताल्लुक ही नहीं रखती, वो दिखाकर तो आपने उसके अगेंस्ट काम कर दिया। दैट्स हाउ आई गेट इट। And people like you talking about those specific image is very important, ताकि वो उसका जो नेगेटिविटी उसकी है वो उसको जायल करके उसकी असल जो कोर है बात उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें। सिद्रा, मुझे ये बताइए कि जब आप ये इस तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं और आप एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म हैंडल कर रही हैं, हु वाज योर मेंटोर, और आप किसको इंस्पिरेशन के लिए आपने देखा या देखती हैं, या जैसे हम एनर्जी लेने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लोग या हमारे पर्सनल आइडल्स होते हैं, सो आपके लिए किसने ये रास्ता रोशन किया? I was blessed to be raised by my grandmother. मेरी जो नानी थी, मैं कई साल मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के कई साल उनके साथ गुज़ारे. She was the one actually who prepared me for my admission test in Mama Parsi. So she used to teach mathematics to grade 10th, and she was a principal for almost 40 years. एक इंडिया में स्कूल होता था, परियाल स्कूल, वहाँ पर मैंने उनको बहुत ही एक एक उनका डिसिप्लिन्ड लाइफ देखी, एंड दैट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन टू दिस डे दैट आई फील लाइक आई एम नॉट अप टू हर कैलिबर एंड there's so much catching up I need to do. So that she has been my biggest inspiration and biggest motivation. Other than that, I would say my both my parents. My mother, I think she's an epitome of peace and calm. That's one thing I've learned from her. I was not this person that you see today. I also used to be like a can of Coke, to be perfectly honest. But I think my own experiences have mellowed me in ways that are beyond comprehension. Just the mere fact कि मैंने 10 साल पहले एक छोटे से बच्चे को पाकिस्तान में छीन लिया, और उससे कोई राब्ता नहीं रहा कई कई साल, तो उसने मुझे एज अ पर्सन बहुत चेंज कर दिया. एंड दीज वर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस, दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस that I've seen in my life, that Allah Ta'ala has put me through.
जिसने मुझे मेरे थॉट पैटर्न्स को बहुत अब चेंज कर दिया है। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट सर्विंग द ह्यूमैनिटी, इट्स माय ओन डैड, बिकॉज़ मेरे अपने अब्बा अक्सर कहते थे कि सो माय फादर इज़ अ पीडियाट्रिशियन। वो पाकिस्तान में उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस होती थी। ही यूज्ड टू कंसल्ट फॉर डिफरेंट हॉस्पिटल्स एज़ वेल। बट जो इतवार को प्राइवेट प्रैक्टिस में वो बैठते थे, वो कहते थे कभी घर आके कि अगर मैं इनसे फीस लूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अगले वक़्त का इनसे खाना मैंने ले लिया इनके सामने से। तो मैं ओह! तो पापा की वो बात मेरे दिल को ऐसी लगी है कि इट हैज़ रेज़ोनेटेड वेरी वेल विद मी टू द पॉइंट वेयर आई डू थिंग्स एंड आई डोंट इवन रिफ्लेक्ट कि ये मैंने लाइक आई पुट इट बिहाइंड मी एंड आई मूव फॉरवर्ड। आई डू फॉर पीपल एंड आई वुड जस्ट गो अहेड with what's next. माशाल्लाह। What else can I do to make anybody's life better? She doesn't have to be a औरत के उसको वो मिले। हुँ, I am alhamdulillah blessed with a huge circle of people around me that I make myself available for, and that gives me immense solace. In fact, my mom always says कि तुम बाप बेटी एक जगह हो गए हो, and you're like, like मेरे घर में literally I always tell everybody, and I'll use this platform to convey the exact same message that I say every single time, that my doors are open for you day or night. It does not माशाल्लाह। matter आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल, यू कैन ऑलवेज कम टू माय डोर इन द इवेंट यू नीड अ छत, या आपको खाना चाहिए, या आपको छत चाहिए, आपको किसी से बात करनी है, बिकॉज दैट इज द रूट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड लोनलीनेस। बिकॉज इस मुल्क में इवन आई थिंक कोविड was the worst time where these things ओह got येस! highlighted, जब आप एक ह्यूमन टच के लिए आप तरस गए थे। वी ऑल वेंट थ्रू दैट। Yes, एंड yes. दैट्स आई लर्न दैट अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हम सब के लिए एक डिफरेंट टाइप Mhm, का एक कोर्स mhm. था, या एक टाइम या एक फेज जिसमें हमें कुछ उसको सिखाना था, और हम सब ने बिल्कुल, इंसान के लिए अहमियत को समझा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। that's true. माशाल्लाह, आपकी इस बात से मुझे ये याद आया कि जो कहा जाता है कि तरबियत जो है वो आपके घर से होती है। एक तो माँ की गोद है, पहली आपकी दरसगाह है, और उसके साथ ये कि आपके घर का माहौल। अब ये देखिए कि तालीम जो जिसको हम समझ रहे होते हैं वो एक पीस ऑफ पेपर है, एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट डज नॉट जस्टिफाई कि आप एजुकेटेड हैं। जबकि अगर आपकी घर से तरबियत है, तो दैट मीन्स कि वो आपकी पर्सनैलिटी को एक जिस तरह से एनरिच करके एम्पावर करती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपके अंदर जो माशाल्लाह ये सारी जो आपने अपनी एनर्जीज लगाई हुई हैं टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स और सॉर्टिंग आउट, वो आपके घर की तरबियत और आपके वालिद की स्पेशल इंस्पिरेशन है। दैट्स रियली गुड टू नो, एंड दैट्स सच अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर अ वुमन। जो हम अपने घर से सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है। इसी को मैं कनेक्ट करती हूँ कि आपका एक जो रोल अदर देन सोल सिस्टर्स के है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई फील वेरी क्लोज, दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। विमेन टू विमेन का जो प्रोजेक्ट आप कर रही हैं उसके बारे में हमने थोड़ी सी प्रेसिडेंट ऑफ विमेन टू विमेन एंड शजूरी हाउस, उनसे भी थोड़ी सी बात की और कुछ जाना। अब आप उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेजर की रोल प्ले कर रही हैं उसमें, हमें उसके बारे में बताइए। Sahi. Thank you. So I sit on the board for Woman to Woman, which is the nonprofit that I have a lot of love and respect for. And their flagship project is Shehzori House. And I'm the program director for Shehzori House. ग्रेट। जी, शहज़ोरी के बारे में हमें जो जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद है, जो कि जो फाउंडर हैं नुसरत, उन्होंने की, और मुझे वो मेरे साथ चल रही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ना तो माँ का घर है, ना हमारा मायका है, ना मामू का घर है। तो उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ से इनिशिएट हुई थी ये थॉट। आई हर्ड समथिंग अबाउट इट। जी। सो years ago हम वुमेन टू वुमेन के ही फोरम पे बैठ के कुछ पैनल्स कर रहे थे, एंड इट वाज अ पैनल डिस्कशन जहाँ पर इस नीड को आइडेंटिफाई किया गया, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि भाई क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए और इसका क्या हल है। तो
हम इस मुल्क में जो आए हैं, तो हमारे पास जो जो पीछे नहीं है, वो है अम्मी का घर। वी डोंट हैव दैट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम उसको क्रेव करते हैं, स्पेशली व्हेन वुमेन आर गेटिंग मैरिड टू पीपल हियर इन द यूएस एंड दे आर लीविंग देयर सपोर्ट सिस्टम 7,000 miles away and you're coming here to almost Yes. nothing. You don't even know your neighbors. तो ऐसी स्टेज पे एक बहुत चाह होती है कि काश कोई अम्मी का घर होता, जहाँ आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाते, चाय पीते, थोड़ा सा अगर माहौल मुनासिब है तो आपने कुछ वेंट आउट कर लिया एंड यू आर कमिंग बैक। और अगर माहौल मुनासिब है उस जगह पे एंड यू हैव somebody who can like knock some sense in or like just break down the situation for you. Sometimes you're so stuck inside the box, you're not thinking from another person's perspective, which is why receiving becomes very hard and there are arguments and there's friction. You don't want that friction. आपको खुदा ना खास्ता कोई घर खराब नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टेप अवे होना है, मगर वो स्टेप अवे होना भी एक सेफ माहौल में है। ऐसे बहुत माहौल में ज़रूरी नहीं। है। जी, ऐसे माहौल में नहीं कि जहाँ क्वेश्चनेबल हो कि कहाँ चली गई, मॉल चली गई, पार्क चली गई, नहीं। अम्मी के घर पे कोई सवाल नहीं करता। तो अम्मी का घर इज अ सेफ प्लेस एंड दैट्स द आइडिया दैट वी बाउंस्ड ऑफ एंड वी वर लाइक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, कि एक अम्मी का घर क्रिएट करना है व्हिच इज सेफ। सो इवन अगर मैं भी दिल घबरा रहा है, बच्चों को डाला गाड़ी में, आई विल जस्ट गो टू शेजूरी हाउस, बात कर ली वहां पे जाके, कुछ नहीं, चाय पी, अपनी खुद ही चाय बनाई, वापस आ गए। अगर है कोई और वहां पर रेजिडेंट्स, उनसे बातें कर ली, उनके बच्चों के साथ बच्चे खेल लिए। सो इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। इट इज़ होम। Yes, absolutely it is. Absolutely it is. सो दैट्स सच अ वंडरफुल आइडिया, मुझे ये इतना पसंद आया था। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम आ जाते हैं सात समंदर पार, और अगेन वही बात कि बहुत सारे लोगों को इसकी ग्लोरी और ग्लैमर में ये नहीं पता कि जो उनको बगैर मांगे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है अपने मुल्क में या अपनी Mhm. होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं एक किस्म का, बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ना सिर्फ अम्मी का घर बल्कि एक आपकी नोन एनवायरनमेंट। सो जब हम यहाँ आते हैं तो हम सब ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। दैट्स वाई ये मेरे भी दिल के इतने करीब था ये जुमला, और जो मुझे पता चला कि आप उसकी क्रिएटर हैं, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा कंफर्टिंग है कि जब आप कहते हैं कि अम्मी का घर, that means that there are so many unspoken comforts or safety and security, and you're in safe zone. बिल्कुल। That's very interesting. I really liked it. बिल्कुल। So for Shehzori, ये first Pakistani shelter house है, right? That's right. जी। फर्स्ट और पाकिस्तानी मुस्लिम खवातीन का शेल्टर होम। सो अगेन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट, और इसको मटेरियलाइज करने में आपको हेल्प मिली यहाँ से। सो इनिशियली वी, जैसे कि नुसरत आपी ने आपके पिछले शो में भी जिक्र किया था कि the need was immensely felt and the idea was pitched to people in the community and people in power, and alhamdulillah we were blessed to have gotten $50,000 in seed funding initially from the state of New Jersey and दैट्स वेरी वेरी एम्पावरिंग। जी। तो उस रकम से घर शुरू किया और उसके बाद द डे हमें कीज मिली हैं हमारे पास, वी हैड ऑलरेडी वी वुमेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रीचिंग आउट कि हमें ऐसा है, तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि वी आर ऑलरेडी इन द वर्क्स एंड it's gonna be popping up anytime soon. So we properly have a intake process, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को clarify कर लेते हैं just to make sure that we're whoever is the new incoming resident is a safe resident for people who are already living there. So there's a lot of legwork that has gone in there. There's a lot of efforts, मैं कहूँगी, efforts is a small word, I'm telling you. हमने आई नो। we have devoted our time, our attention to this project, and
जहाँ भी ये अभी है, हम इसको यहाँ से भरपूर तरीके से आगे धक्का देना चाहते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें तो ये भी यकीन नहीं आता कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह आगे गुड थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। एवरी ईयर वी हैव अ फंडरेजर, like this year we had a great fundraiser, alhamdulillah, alhamdulillah. We were able to raise quite a significant amount of money to, sustain the project, because just bills, utilities, and meant keeping that roof, that is sufficing for, these khawateen and children. ये तो बहुत एक, आप समझ लें, एक मरहला है, क्योंकि मैं कहती हूँ ये लोग, ये जितने हमारे रेजिडेंट्स हैं, अपने नसीब से लेकर आते हैं, और बिल्कुल। जहाँ जहाँ से भी इन जितनी ये तकालीफ से गुजरे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए रास्ते खोलते जा रहा है, चाहे वो टाउनशिप के जरिए हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज के जरिए हो, चाहे वो मुझे लाके मेरे कजिन ने कुछ सामान दिया कि सिद्रा, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, एंड देन नेक्स्ट थिंग आई नो, आई केम टू नो अभी, we just few days ago we have just welcomed the family of, you know some kids and a mother who had lost their father, and father was the breadwinner, तो अब उनको सब सामान चला गया, तो कहाँ से अल्लाह ताला ने वसीला पैदा किया और वसीले तक सामान पहुंच गया। तो और इट्स ऑल और मेरिट। वो वसीला आप लोग भी बने ना। सबसे पहले तो वही बात है कि कम्युनिकेशन और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे बड़ा वसीला ये बनते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको चूज़ करता है कि वो दूसरे लोगों तक ये नीड पहुँचाते हैं, तभी वो कोई रास्ता खुलता है। तो अगेन मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पसंद करूँगी कि ये प्लेटफॉर्म्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और कम्युनिटी वर्क और सोशल वर्क विद इन द कम्युनिटी कितना इम्पोर्टेंट है, और उसकी कितनी ज़रूरत है। स्पेशली वही आपकी बात को रिपीट करके कि जब हम अपना सपोर्ट सिस्टम छोड़ आते हैं, तो नॉट एवरीबडी हैज़ दिस पावर और दिस मच डेडिकेशन कि वो पर्सनली बिल्ड कर सके। So that's a very, very great job that you guys are doing. जी सिद्रा, जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो उसके साथ चूंकि विमेन एम्पावरमेंट हम कहते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसमें जो मर्द जात है वो हमारे साथ किस तरह से शामिल हो सकते हैं, और अगर शामिल हैं तो जो उसके साथ शेम एसोसिएटेड है, उसको कैसे काउंटर करें? आई थिंक द आइडिया इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और जैसे कि मैं पहले भी इस बात के ऊपर जरा सा टच अप कर चुकी हूँ कि this community or any community cannot come together unless both genders come in collaboratively. और बिल्कुल। women empowerment की हम बातें करते हैं, to this day, even in a first world country like the US, women are still fighting for gender pay gap. So Yes. you see that there is a need for it. और एक है, एक अनफॉर्चुनेटली एक हमारे माशरे का और हमारे एक वक्त का अलमिया बन चुका है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स, जैसे अभी कुछ थ्योरीज पढ़ी थी कि सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि खवातीन को मैटरनिटी लीव पूरी नहीं मिलती, they don't get help when they are getting back into their career. I struggled. I took a break when I had my मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, तो I took a बिल्कुल। break from the career, and I had a very hard time to get back into the workforce. And despite ऑब्वियसली। of the mere fact that I was attending Stern at the time, मगर उससे मुझे वो पुश नहीं मिला जो उस वक्त मुझे मिल सकता था अगर मैं जॉब नहीं छोड़ती। मगर आई हाँ। थिंक कोई माशरा उस वक्त तक साथ नहीं आ सकता जब तक मर्द और औरत आपस में हाथ मिलाकर अपने मॉडेस्टी के दायरे में नहीं चले। एंड men are our biggest supporters. Men are our biggest supporters. They are our biggest allies. I did not bring myself into this world. My parents did, right? So when I look for strength, when I seek resilience, and when I seek that humility and strength, I look up to my dad. Similarly, एक certain time period के बाद that figure becomes your husband, that figure becomes यस। the other people, the strong men in your community, the strong men in your family. तो आपके पास 100% इस तरह अल्लाह ताला ने ऐसे अनासर पैदा किए हैं जिनको आपको खुद पर्सनली आइडेंटिफाई करना है, और once you have identified, just try to collaborate with them in a way that they feel respected, they feel loved, and that goes for both the genders. Both genders need to feel equally valued and respected, and you work on things together. You bring them, you share with them, you bring them together, you bring them on board with your ideas and things that you're pursuing, and then you pursue it together.
So empowerment shouldn't Yes. just stop at women. There is no stopping to empowerment to begin with. The empowerment shouldn't just stop at women. It's a community effort, and it needs to continue to grow. बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ वी कैन नॉट सेग्रीगेट एक स्पीशी को दूसरी से और सिंगल हैंडेडली हम कहें तो सबसे बड़ी हमारी एम्पावरमेंट आर मेन बी इट फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स बिल्कुल। और मेन जो हैं दे मेंट टू बी केयर गिवर्स और Why? प्रोटेक्टर्स तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है और उनको साथ लेके चलना इज वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा सिद्रा हमें बताइए कि कुछ कोई ऐसे अपकमिंग इवेंट्स जो सोल सिस्टर्स यूएसए में आप लोग कर रहे हैं या हम एक्सपेक्ट करें जिसके लिए आप कोई एक्साइटेड हो कोई एक्साइटेड न्यू इनिशिएटिव्स। Sure. So we are planning, that is in the works. हम लोग एक intimate सी एक gathering करना चाह रहे हैं, and when I say intimate gathering, it's only because I strongly believe कि जब आप किसी महफिल में जाएं तो वो कोई झुमघट्टा नहीं बन जाए कि जिसमें आपको यही नहीं पता हो कि आपके बराबर में कौन बैठा है, उनका नाम आपको याद ना रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हो ये सोचने के लिए कि उनके नाम के आगे भी उनकी लाइफ स्टोरी क्या है. So the reason, I think that kills the purpose of meeting together. I think it boils down to the point where आपको कोई बड़ी बड़ी किटी पार्टीज करने की जरूरत नहीं है. I'm not in favor of those. I personally do not, I try to refrain from attending them, to be perfectly honest, because it just does not make me feel purposeful. If the purpose is not served, why is my presence there even necessary? So if there's a purpose for it, if there's a reason for me to be there, I would drop things and have to, if I would have to reshuffle or reprioritize, I would do that, and I would make Hmm. myself available. But if there's no purpose or a reason for that meetup, I don't want to have a meetup just for the sake of having a meetup. So what I'm working on is having a small intimate gathering with some खवातीन जो कि दे आर इन पोजीशंस ऑफ पावर. नाम obviously disclose नहीं कर सकती मगर it's definitely in the works, and inshallah we're looking at August to have that gathering. It's actually in woman owned business here in Central Jersey, और वहाँ पर it's an art gallery. So Oh inshallah, wow. we're in the works. We're in the works. Yes, but it's going to be extremely small, not more than 15-20 people, because I do not want it to eventually become, Yeah. I But don't that's want it. very interesting. I would like to know more about it. Yeah, And we'll do another episode on that. sure, inshallah. Okay. So, one small question, आपका इतना important time ले रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ ही निकाल लूँ. मुझे ये बताइए कि जब हम आते हैं और as first generation, how important it is to participate in local politics or की रोल्स जो होते हैं जिससे जो ट्रेडिशनली हम उनको नहीं टच करते हैं तो सोल सिस्टर्स इसके बारे में क्या उनका आइडिया है हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स एज पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑन इन पावर कॉरिडोर्स I think it's extremely important. It is imperative for people from our color um, to be in positions of power, because that is the only way we can make a difference. Recently, we have worked with different townships, और कई हमने वो पिटिशंस वगैरह साइन किए. मैं ये नहीं कह रही सोल सिस्टर डिड दैट, बट व्हाट आई एम शेयरिंग इज व्हाट द कम्युनिटी हैज डन ओवर हियर इन द यूएस, कि हमें ईद के हॉलीडेज चाहिए, और अब उस Hmm. चीज को पुश किया गया है. सो नाउ वी डू, अब हमारे बच्चों को ईद पे छुट्टी दी जाती है, एंड दैट छुट्टी इज रिकॉग्नाइज्ड. द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, द Yes, स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, नाउ सम डिस्ट्रिक्ट्स इन न्यू जर्सी आर डूइंग इट. that's a big win. It sure is. It sure is. Previously, that was never the case. Even if you look back a few years ago, that was never the case. It was when kids from our culture and our I'm sorry, when kids from our um, when Pakistani kids would go to school, they would not see somebody जो कि उनके रंग का हो. तो अगर मैं अपने उम्र के, अपने से कुछ थोड़े बड़े उम्र के लोगों से अगर कभी बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम में तो हम अकेले थे,
I Pakistan. know. There was nobody who looked like us, so we were afraid. There was so much, and that has its own built-in trauma, because again there is no way for them to identify this hyphenated identity, and there is no way for them to accept and understand that they are coming with a breadth of culture, with a breadth of valuable resources to bring them, और बिकॉज वो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के, बिकॉज इंतशार, जहनी इंतशार इतना हो जाता है कि उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं, एंड दैट अगेन ब्रिंग्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पेरेंट्स कि वो घर का माहौल और उनको कम्युनिटी से अटैच रखें, कि उनको पता हो कि भाई दिस इज हु वी आर एंड दिस इज वेयर वी आर हेडेड टू. परफेक्ट। और अगेन मुझे एक और एपिसोड का पूरा आइडिया आता जा रहा है सिद्रा। मेरा एक मेजर जो है एक फोकस है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हमारे बच्चों को यहाँ फेस करना पड़ता है। और मैं हमेशा उसके ऊपर छोटा छोटा सा जो है ना वो डिग करती रहती हूँ कि टू नॉक दोज डोर्स, के जहाँ हम उसको इंश्योर कर सकें कि हमारे बच्चे भी एक सेफ जोन में हैं। जबकि यहाँ हर कम्युनिटी जो है, जो हमने देखा लाइक स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी स्पेसिफिकली बहुत बड़ी है, एंड दे हैव ऑल द डेज सेलिब्रेटेड, बी इट एनीथिंग, हम भी वो करते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्रॉपरली उन्होंने इन्फोर्स किया हुआ है। एंड देन अदर रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो कि बहुत छोटी तादाद में है, लेकिन उनकी हर छुट्टी जो है वो प्रॉपरली यानी कि अप्लाई हो चुकी हुई है। सो आवर डिस्ट्रिक्ट इज स्टिल पीछे है आप लोगों से, बट आई एम सो ग्लैड, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को ये पता है कि ईद की छुट्टी है, इट्स अ बिग थिंग। और वही बात है कि पाकिस्तान में रहने वालों को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ये चैलेंजेस भी हमें कितने ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। So thank you so very much, Sidra. It was such a pleasure having you on the show. और इतना मजा आया, मैंने खुद इतना सारा कुछ लर्न किया है, और साथ साथ बहुत सारे आपने सवाल मुझे और मेरे दिमाग में रेज कर दिए हैं, जो कि मैं चाहूंगी कि हम इसको बैक एंड फोर्थ जो है वो आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम इनको अच्छी तरह से खुल के डिस्कस करें और आपसे हमें कुछ सीखने का मौका मिले। Absolutely, pleasure is all mine. थैंक यू सो मच। इसके साथ हम फिनिश करते हैं आज की एपिसोड। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फाइजा, एवरी वीक with a new guest, new adventure, and new experience. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.